Wish you a lovely day, students. Hope all of you are healthy at home. So, today this is your class 6 and history. So, here we have already completed the 2 lessons, and today we will discuss the third lesson, that is the first farmers and headers. So in this lesson we will discuss the Mesolithic age. So we know that our stone age is divided into three periods, that is Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. So I have discussed here Mesolithic period. So let's get started with our Mesolithic period. So in this Mesolithic period, I have discussed here about the tools, domestication of plants and animals, then the first houses and paintings and burials. Okay, let's get started by one. Okay, so first is our tool. सो टूल का मतलब क्या होता है? टूल का मतलब जो वो लोग यूज़ करते थे हंटिंग के लिए और फिर फूड कलेक्शन के लिए। हंटिंग मीन्स शिकार करते थे और फूड कलेक्शन करते थे। और क्या वो जो शिकार करते थे वो जो स्टोन टूल होता था वो किस तरह से होता था? ये पहले तुम लोग जानते हो कि इसको स्टोन एज क्यों कहा जाता है? स्टोन एज इसलिए कहा जाता है कि ये पीरियड में स्टोन टूल्स यूज़ किया जा रहा था, इसीलिए इसको स्टोन एज कहा जा रहा था। तो स्टोन टूल्स जो यूज किया जा रहा था ये सब किस तरह से वो लोग बनाते थे? सो चिप्ड स्टोन टूल्स, चिप्ड स्टोन टूल मीन्स उसको वो लोग इस तरह से बनाते थे जो कि उनको शिकार करने के लिए वो स्टोन टूल्स ईजी होगा। जैसे एरो लाइक वो जो टूल्स रहता था ये क्या स्टोन से बना हुआ रहता था और इस तरह से वो टूल्स रहता था। तो ये जो चीज़ रहता था इससे उनको शिकार करने के लिए इजी होता था। और एक है ये माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मीन्स माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड माइक्रोलिथ मीन्स दिस इज द नेम ऑफ द स्टोन टूल्स एट दैट टाइम दे वर यूजिंग। सो ये माइक्रोलिथ मीन्स क्या होता है? माइक्रोलिथ मेनली 1 to 5 इंचेस उसका साइज रहता है। 5 इंचेस उसका साइज रहता था। तो 1 to 5 इंचेस वो जो साइज रहता था इसीलिए उसको माइक्रोलिथ टूल्स बोल के बोला जाता था। तो ये इससे वो किस तरह से टूल्स यूज करते थे? देख लाइक योर लाइक स्पीयर्स, so like spears and arrows, this type of tools they use usually. And what happened, these tools are already attached, also attached with woods and bones. Okay, look students, here some examples of the tools are given. So here look, bones, ivory used, blade, core, knives, chisel, triangle, warden. So these are the name of the stone tools mentioned here. And here look, these tools are just fixed with wood and some tools are fixed with bones also. So here what are the uses of these tools? They used to use these tools, just think students, why they used these tools? What are the usefulness of these tools at that time? They used to collect honey first, and to hunting animals, and and also the one more thing, their main food is fishing. So they liked to do fishing at that time, and fishing is used. Fishing is done by the hooks. Okay, this is the name of the tools. So your next is we'll discuss next for that domestication of plants and animals. So let's first understand what is domestication. So here it is mentioned that domestication, this is the definition is given here. Domestication is the process by which plants and animals are brought under human control. Means brought under human control का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन के कंट्रोल के अंदर आ जाता है प्लांट्स और एनिमल्स। मीन्स वो उसको
पेट, जैसे हम अभी क्या करते हैं, पेट एनिमल्स रखते हैं। तो पेट एनिमल्स मतलब उनको हम जैसे चाहते हैं वैसे रखते हैं, जहाँ पे हमको मन करता है वैसे रखते हैं, उनको खाना देते हैं हम। तो उसी तरह वो भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिए थे, और फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल उनका था डॉग। And also the plants, they started farming also. So plants and animals are under the human control, so this is known as domestication. So let's that here, and this picture is given that dog was the first tamed animal. Look at here, this picture, this is the picture of Mesolithic period, and here that is dog was the first tamed animal. Try to remember this. And later on he started to domesticate sheep and cattle like this. Okay, so after that one thing, the climate get warmer in these days. So due to this warming climate, what happened, the plantation or the farming started. So which type of crops they grow in these days? This barley and wheat. Okay, so how at first you know कि जैसे कि तुम लोग जानते हो कि उन लोग को फर्स्ट उनको कुछ नहीं आता था, उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो उनको क्या पता चला होगा कि वो स्टार्ट कर दिए हैं, फार्मिंग स्टार्ट कर दिए हैं। पैलेलिथिक पीरियड जो था, पहले हम लोग इसके पहले जो डिस्कशन कर चुके थे, तो पैलेलिथिक पीरियड में वो उनका ये फार्मिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। और ये जो है वो उस समय क्या करते थे, खाली हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, एक साथ एक जगह में इकट्ठा रहते थे और हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करते थे। और यहाँ पे लेकिन उनको फार्मिंग के बारे में पता चल चुका था, फार्मिंग के बारे में पता चल चुका था, मतलब दे नो द मैजिक बिटवीन सीड एंड प्लांट। दैट कभी क्या हुआ होगा, कहीं कुछ पेड़ से सीड कुछ कहीं पे गिरा होगा, और वहाँ से फिर जब प्लांटेशन स्टार्ट हुआ होगा तो वो लोग उसको मार्क किए होंगे कि किस तरह से प्लांटेशन हो रहा है। तो वो क्या किए थे, उसको डिस्कवर करके वो प्लांटेशन स्टार्ट किए थे, या फिर फार्मिंग स्टार्ट किए थे। और फार्मिंग के लिए उनको क्या क्या चाहिए होगा, उनको फर्स्ट वाटर चाहिए होगा। तो वाटर के लिए वो क्या करेंगे, उस समय तो जैसे बोरिंग, अभी जैसे हम लोग के घर में बोरिंग रखा हुआ है, या कहीं से भी हम पानी ला सकते हैं। तो उस समय, बट इन दैट पीरियड they used to stay near the river valley. Okay, so look here, this is the picture given that important item of food. I have already told that fish became an important item of food. So we are discussing about the first houses. So first houses means वो लोग जैसे वो रहना स्टार्ट कर दिए थे कि वो कहाँ रहेंगे और कैसे उनका जो फार्मिंग होगा वो कैसे करेंगे, फार्मिंग वो कैसे कर सकते हैं। वो फार्मिंग के लिए रिवर वैली साइड को चूज करते थे। रिवर वैली साइड को क्यों चूज करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा और वो इजीली कुछ भी हार्वेस्टिंग का काम कर सकते थे। सो वो क्या करते थे, कहीं पे वो हंटिंग भी कर रहे थे, तो हंटिंग के लिए कहीं पे वो जाते थे और वहाँ से हंटिंग भी करते थे, और फिर जब उनका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता था वो अपना प्लेस को रिटर्न आते थे, जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहे थे वो प्लेस को रिटर्न आते थे और वहाँ पे वो फार्मिंग कर रहे थे या हार्वेस्टिंग कर रहे थे। और जब तक वो पूरा अपना हार्वेस्टिंग कंप्लीट नहीं कर लेते थे वहाँ पे वो रहते थे और वो फूड को गैदर करना भी सीख गए थे। Okay, they invented wooden bows and arrows for hunting birds and fishing also. Okay, so next this picture is given of the activities that farming, herding, gathering, fishing in groups. एंड जैसे कि हम जानते हैं कि वो लोग ग्रुप में रहना पसंद कर रहे थे और वो ग्रुप में रह के एक साथ सब कोई फार्मिंग कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, सब कोई एक साथ रहते थे। तो क्यों वो लोग एक साथ रहते थे, क्योंकि
at that time all over there are forest only, and they were just feared from the from the wild animals. So because of this they used to stay together. So next, like paintings. So there are another thing, that is painting. So main colors which they used to paint, that is red and white. So some the colors वो लोग कहाँ से बनाते थे, रॉक्स से या फिर नेचुरल मिनरल से बनाते थे। और वो जो पेंटिंग कर रहे थे, तो वो पेंटिंग वो लोग कहाँ पे कर रहे थे, जैसे केव हुआ, केव में पेंटिंग कर रहे थे, रॉक में पेंटिंग कर रहे थे। और वो क्या चीज़ पेंटिंग कर रहे थे, सो वो क्या चीज़ पेंटिंग कर रहे थे, जो वो हंटिंग करते थे, उनका कल्चर और वो जो उनका जो ट्रेडिशन था, या फिर वर्शिप कर रहे थे जो, वो सब वो पेंटिंग में दिखा रहे थे। और किस तरह से वो हंटिंग कर रहे थे, वो सब वो पेंटिंग में दिखा रहे थे। तो ये एक पिक्चर दिया गया है, तुम लोग का बुक में है, दैट प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग एट भीमबेटका इन सेंट्रल इंडिया। सो और एक बात है जो कि जो मेसोलिथिक पीरियड जो है वो कहाँ तक ये मतलब कहाँ इंडिया में कहाँ था, कहाँ देखने के लिए मिला है, दैट सेंट्रल इंडिया एंड द वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो। सो Mesolithic sites in India, this is a map given here, that Mysore and Adamgarh, these two sites I have already, and also mentioned some more sites of India. So these are the example of Mesolithic sites in India. So next is, look students, this is the rock painting of Panchamari, Madhya Pradesh. This is from Madhya Pradesh, this painting is from Madhya Pradesh, and this is Panchamari, Madhya Pradesh, and some more rock paintings are here also. So डर गई मैं, ये क्या है, ये तुम लोग तो नहीं डरे हो ना, ये है क्या, देखो इसको बोरियल्स बोलते हैं। तो ये जो बोरियल्स है, ये बोरियल्स में क्या होता था, जो लोग मर जाते थे उनको यहाँ पे क्या कर गाड़ देते थे। तो गाड़ देते थे मीन्स उनको किस तरह से गाड़ते थे, उनको ऑर्नामेंट्स, देखो वहाँ पे वो लोग ऑर्नामेंट्स पहने हैं, वेट देखो ये यहाँ पे ऑर्नामेंट्स, ये यहाँ पे ऑर्नामेंट्स पहने हैं, देखो ऑर्नामेंट्स पहने हैं। और ये जो ऑर्नामेंट्स वो लोग पहने हैं, उनको क्यों पहनाया जा रहा था, ऑर्नामेंट्स भी वहाँ पे रखा जा रहा था, या फिर कुछ फूड आइटम भी रखा जा रहा था, और कुछ वेपन्स भी रखा जा रहा था। तो वो जो ऑर्नामेंट्स और फूड आइटम्स और वेपन्स रखा जा रहा था वहाँ पे, क्यों रखा जा रहा था, क्योंकि वो लोग ये बिलीव कर रहे थे कि आफ्टर डेथ उनका फिर भी वो, जैसे कि उनको वो सब चाहिए, जैसे उनको लाइफ में उनको ये सब चाहिए होता है, और आफ्टर डेथ भी उनको वो सब चाहिए हो रहा होगा, ये मान के ये सब उनके साथ, जब वो लोग कोई भी लोग मर जा रहे थे तो बॉरियल्स में उनको वो रख रहे थे। द डेड वेर बरीड along with offerings such as food and ornaments also. So next, this is the picture of Begor, Rajasthan. Okay, and here this is the list. This is the list of some Mesolithic sites in India. So on the left side, here are some Mesolithic sites. So here these are the names of some places, and these are the names of the states belongs to it. So here, for look students, read this. Just now you have seen that Panchamari from Madhya Pradesh, and Bhimbetka, where the rock paintings were found. So Bhimbetka of Madhya Pradesh, and Mysore also in Karnataka. So here, this is the rock painting of Panchamari in Madhya Pradesh. This is Begor in Rajasthan. Panchamari in Madhya Pradesh. Okay. So next, here is the Bhimbetka. This is the Bhimbetka of Madhya Pradesh. Okay students.
So these are some Mesolithic sites in India. So students, thank you. Hope all of you have enjoyed this lesson, and if you have any doubt, then you can ask me through my WhatsApp. And if you like the video, then please like, subscribe my channel, and also I will send you some homework in the WhatsApp, and complete it timely. And further, if you have any doubt, then you can ask me. So students, thank you. Stay happy, stay healthy. Bye bye.